بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھ سے پیشتر آپ تمامی حضرات نے محب گرامی وقار حضرت حافظ محسن رضا سے بہترین انداز میں نعت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ ان کے بعد شاعر عبدالعزیز قاری خوش الحان استاذ الحفاظ حضرت حافظ قاری محمد امین خان صاحب قبلہ سے آپ تمام حضرات نے بہت ہی لاجواب و نظیر و مثال انداز میں نعت نبی سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں گے تو میرے بعد ہم سب کے امام صاحب کرم فرما حضرت حافظ و قاری محمد شفیع خان صاحب قبلہ جو ہم سب کے امام ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، ان سے آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، چند منٹ کے لیے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ محفلوں کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس جائز مقصد کے لیے اس میلاد خانی کو رچائی گئی بسائی گئی مولا ان کے تمام دلی جائز تمناؤں کو رب قدیر پوری فرمائے۔ حضرات محترم، یہ عقیقہ کے موقع پر جشن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا ہے۔ یہ عقیقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عقیقہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدائش کی خوشی میں، جیسے قرآن شریف میں ہے نا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کے خوب خوب چرچے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے، اولاد کی شکل میں کوئی بھی دے، جب ہم اولاد کے گھر آباد ہوتے ہیں نا تو ماں خوش ہوتی ہے، باپ خوش ہوتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور یہ مزاج ہے رب کی نعمتوں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، رب کی نعمتوں پر خوشیاں منانا بھی چاہیے۔ تو اولاد کی خوشی میں، اولاد کی پیدائش کے شکرانے میں ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے تمام تر جسم کے ہر پردے پر بلائیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرات، تو ان بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں کے خاتمہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اس کائنات میں تشریف نہ لایا تھا، میری تشریف لانے سے پہلے اللہ کے رسول فرماتے عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، جانور کو کاٹا جاتا تھا، کاٹنے کے بعد میں اس خون میں بچے کو نہلایا جاتا تھا، بچے کو خون سے لت پت کر دیا جاتا تھا، بچے کو خون سے یعنی خون بچے کے جسم میں ملا جاتا تھا، لگایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جانور کو ذبح کر کے اس لیے نہ ذبح کرو کہ کسی کو اس کے خون میں نہلایا جائے، کسی کو اس کے خون میں ڈبایا جائے، کسی کو اس کے خون میں لت پت کیا جائے، بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جانور کو بچے کے ولادت پر یا بچے کی پیدائش پر جانور کو اس نیت سے ذبح کیا کرو اللہ تعالیٰ میں
तेरी बारगाह में कुर्बानी दे रहा हूँ मौला, आने वाले की सारी कुछ मुसीबतों परेशानियों को खात्मा फरमा दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दूसरी वजह है अकीका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अकीका फरमाया अपने नवासों का, हजरत सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम अकीका भी फरमाया और आपने नाम भी रखा। इसलिए बच्चा पैदा होना तो उसका नाम रख देना चाहिए, अकीका कर देना चाहिए। हजरत अकीका की बात आई तो मैं एक बात बड़ी दिलचस्प और आप लोगों की जानकारी और नॉलेज के लिए आप लोगों को बताऊं कि हश्र का मैदान होगा, आप लोगों ने सुना होगा, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बिल्कुल सब अपने अपनों में पड़े होंगे। हजरात मोहतरम, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटी बाप से, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी, वहाँ सब अपने अपनों में पड़े होंगे, तमाम तरह अहिंसा करama सब अपने अपनों से भागते होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मगर एक ऐसा भी हश्र के मैदान में होगा, या तो माँ की शिकम में मर गया हो या माँ के पेट से पैदा हो करके, यानी बालिग होने से पहले पहले बच्चा दुनिया से चला गया हो, बच्चा मर गया हो, इस हद तक, यहाँ तक कि बालिग ना हुआ हो, उस पर नमाज ना फर्ज हुई हो, उस पर रोजा ना फर्ज हुआ हो, उस पर उमूरे दीनिया के हकामात ना फर्ज हुए हो, उससे पहले वो दुनिया से इंतकाल कर गया हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बच्चा हश्र के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, तो रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, अर्ज करेगा, बारे इलाह मौला अगर जिंदगी देता तो मैं इनको इबादत के जरिए माँ को जन्नत दिलाता, अगर जिंदगी देता तो नमाज पढ़ करके बाप को जन्नत दिलाता, कुरान पढ़ करके बाप को जन्नत दिलाता। मगर मेरे मौला तूने तो जिंदगी दी नहीं, जिंदगी मिली नहीं, परवरदिगारे आलम उस वक्त रब की रहमतें जोश पर आएंगी और रब का इरशाद होगा, बंदे तू कौन है, तू कौन है? अर्ज करेगा, मौला मैं वो हूँ जो माँ की शिकम ही में मर गया था। माँ के पेट में बहुत सारे बच्चे मरे पैदा होते कि नहीं होते, माँ के पेट में मर जाते। बहुत ऐसे बच्चे होते जो दुनिया में आते 2-4 सांस लेते मर जाते, बहुत ऐसे होते 2-4 घंटे जी के मर जाते, बहुत ऐसे होते 2-4 साल जी के मर जाते, बहुत ऐसे होते कि 2-4 5 6 7 8 साल, यहाँ तक कि बालिग होने से पहले अगर दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब की बारगाह में इस तरह रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, रब पूछेगा ये कौन है? फरिश्ते अर्ज करेंगे, बारे इलाह ये वो बंदे हैं तेरे मौला की जिन्होंने माँ के शिकम में सांस तोड़ दिया था, मौला ये वो तेरे बंदे हैं जिसने माँ के शिकम में ही इंतकाल कर गए या दुनिया में जाने के बाद में इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। रब की रहमतें जोश पर आएंगी और नबी फरमाते हैं कि खुदा की बारगाह में वो छोटे छोटे बच्चे इस तरह रब की बारगाह में कि लड़ झगड़ करके अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। लड़ झगड़ कर हर किसी की मदाल की रब के सामने खड़ा हो सके, रब के सामने उस वक्त तो रब जब अदालत पर होगा ना तो इंसान यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम आला नबी अलैहि तहियतो व सना जैसी अजीम शख्सियतें हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम कहेंगे, ओ लोगों जब से रब हिसाब पर आया है ना तब से तो मेरे पांव थर्राते कांपते बंद नहीं हो रहे हैं। वो पैगंबर वो नबी वो इब्राहिम का आलम होगा, तमाम पैगंबरों, यहाँ तक कि जब रब हिसाब लेने के लिए बैठेगा तो ये नबियों की जमात तो नबियों की जमात है। मुस्तफा फरमाते हैं फरिश्ते भी थर्राते कांपते हुए नजर आएंगे कि न जाने रब कब किस चीज का किससे हिसाब ले ले। बेशक बोलो उस वक्त हिसाब दे सकते हो? हजरात अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बारगाह खुदा में जब सिफारिश करेंगे ना, लड़ेंगे तो उनकी लड़ाई उनकी सिफारिश कबूल होगी जिनके नाम दुनिया में अकीका हुआ होगा। अकीका जिनके नाम हुआ होगा। अब दुनिया में पैदा हो तो नबी फरमाते 7वें दिन बच्चे के बाल उतरवाए जाए और अकीका करा दिया जाए, नाम रख दिया जाए। और वो भी नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ऐसा नाम जो जैसे खुदा के नाम पर आप रखें ना तो अब्दुल्ला रख दे, अब्दुल मलिक रख दे, अब्दुल कुद्दूस रख दे,
अब्दुल रहमान रख दे, अब्दुल रहीम रख दे, अब्दुल कय्यूम रख दे। यानी ज़ाते बारी ताला जब रखे, जब खुदा का नाम रखे ना, तो उसके आगे अब्द लगा दे, अब्द। और जब नबी फरमाते हैं कि जब मेरे नाम पर रखना हो तो बच्चे का नाम मोहम्मद रख दो, बच्चे का नाम अहमद रख दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी की बारगाह है एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर हुआ हूँ, मुस्तफा की मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। नबी फरमाते हैं, मुबारक हो तेरे घर आज मेरा गुलाम जन्म लिया है। बेशक बेशक बेशक। नबी फरमाते हैं, तो सहाबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल नाम क्या रखूं? तो मुस्तफा फरमाते हैं, जा अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दे। बेशक बेशक सुभान मोहम्मद रख दे। फिर कुछ दिन कुछ साल का अरसा गुजरा, फिर आए आका इरशाद, आका की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह के रसूल घर में बेटा पैदा हुआ। नबी ने मुबारकबाद पेश की और नबी की बारगाह में अर्ज करते, नाम बता दे मुस्तफा। पहले का माहौल ये था ना कि जब बच्चे माशरे में किसी मुसलमान के घर पैदा होते थे ना, तो नाम किसी पढ़े लिखे हाजी नमाजी इमाम आलिम हाफिज से पूछ के रखा जाता था। मगर ये माशरा इतना गंधैला माशरा हो चुका, इतना बिगड़ गया माशरा कि आज जूते चप्पल के नाम पर बेटा बेटियों के नाम रखे जाते हैं। हर रात में अर्ज करूं, मेरे आका इरशाद फरमाते, नबी की हदीस पाक है कि बच्चा हो या बच्ची, उसके नाम जो नाम होगा ना, उस नाम का असर उसके अंदर जरूर होता है। सच है। अगर नाम जूता वाला होगा या चप्पल वाला या नीचे वाला होगा तो नीचा ही काम, गिरा काम करेगा। तो मेरे भाई, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहूंगा, नाम बेहतर रखो बच्चों का, अच्छे नाम रखो। नाम नहीं मिलते, आप तारीख पढ़ करके देखें ना। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर किसी का नाम कह दो मोहम्मद, तो कहते हो मोहम्मद तो मेरे चचा के लड़के भतीजे का नाम है, फलाना का नाम है, ठकाना का नाम। मगर मैं आपको बताऊं, मेरे मुस्तफा की बारगाह में वो सहाबी हाजिर हुए ना, दूसरी बार अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ है। नबी इरशाद फरमाते, मुबारक हो। अर्ज करते हैं, आका नाम बता दे, नाम क्या रखूं? मुस्तफा ने फरमाया, मोहम्मद रख दो। बेशक बेशक बेशक। दो भाई, दोनों नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों का नाम मोहम्मद मोहम्मद। फिर तीसरी बार आए, मुस्तफा फरमाते, क्या हुआ? अर्ज करते, अल्लाह के रसूल फिर बेटा जन्म लिया। तो नबी मुस्कुराए, मुबारकबाद पेश की और नबी इरशाद फरमाते, मुबारक हो। अल्लाह ने मुबारकबाद, अल्लाह के रसूल ने मुबारकबाद पेश की और नबी फरमाते हैं कि उसका भी नाम मोहम्मद रख दो। तीन हो गए। फिर चौथी बार आए, फिर नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल घर में बेटा पैदा हुआ है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, उसका नाम भी मोहम्मद रख दो। ये परेशान हुए, अर्ज करने लगे, आका ये बेटे का नाम मोहम्मद समझ में आया, दूसरा बेटा मोहम्मद, तीसरा बेटा मोहम्मद, ये चौथा बेटा भी मोहम्मद। तो आका इरशाद फरमाते, तुम्हें नहीं मालूम, तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। अर्ज करते हैं, आका रहबरी करे, रहनुमाई करे, मुस्तफा बता दे। तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का आदमी बैठा होता है, अल्लाह ताला बेशक 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 बेशक, अल्लाह ताला उस दस्तरखान से कभी बरकतें नहीं उठाता है, बल्कि उस दस्तरखान पर अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबी का तुम्हें नहीं मालूम है, तुम नहीं जानते हो, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हश्र के मैदान में सबकी जुबान पर होगा, या मोहम्मद, बेशक बेशक बेशक, सब मोहम्मद को आवाज देंगे। बेशक। और वो मेरे सहाबी, क्या तेरे पास चार चार मोहम्मद होंगे? ये कम है। बेशक बेशक। तो मेरे भाई, नाम अच्छा रखे, बेशक, नाम बेहतर रखे। नाम या लल्लू पंजू टट्टू पट्टू न रखा करें, बल्कि नाम अच्छे बेहतर रखें। इन नामों का असर होता है। कनीज़े फातिमा रख दो, फातिमा रख दो, आयशा रख दो, हफ्सा रख दो, अस्मा रख दो। मुस्तफा की अजवाज़े पाक देख लो, नबी की बेटियों को देख लो, सहाबा सहाबियात और उनकी बेटियों को देख लो। बुजुर्गों के नाम पर अगर हम नाम बच्चों का रखेंगे ना, तो हमारे बच्चों के अंदर बुजुर्गी और बच्चे बेहतर होंगे। मगर जब नाम उल्टा सीधा रखेंगे तो वो हरकतें जरूर उल्टा सीधा करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरात में अर्ज़ कर रहा था कि जब बच्चा दुनिया में पैदा हो, बच्चा पैदा होने के बाद में 7वें दिन अल्लाह तौफीक दे, अगर ऐसा नहीं है कि ये अकीका फर्ज हो, ये सुन्नत है, अल्लाह तौफीक दे। अगर खुदा ने वसाअत दी है, अगर तौफीक है, तो आप बच्चे का 7वें दिन अकीका करें।
بے شک बाल तरशवाएं। और यहाँ तक मशहूर है हम लोगों के माशरे में हजरत कि उस जो बकरा या बकरी की ज़बह किया जाता है उसका गोश्त माँ नहीं खा सकती या नानी नहीं खा सकती या दादी नहीं खा सकती। अजीब अजीब माहौल न जाने कहाँ से गढ़ के निकालते हैं लोग। आखिर ये मामला या मसला क्यों कहाँ से पेश आ रहा है? हजरात मोहतरम, ये आप जो हम और आप माशरे में जी रहे हैं ना, आज हम और आपके माशरे में जहालत की झलक अब तक बाकी है। हजरात मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये जो अकीका किया जाता है ना, ये अकीके का जानवर सदके का जानवर है। अब सदका आप कहेंगे, सदका तो गरीबों के लिए है, सदका तो फकीरों के लिए है, सदका तो मिस्कीनों के लिए है, मगर मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ये वुजूबी सदका नहीं है, ये नफली सदका है। बेशक 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 नफली सदका है। आका इरशाद फरमाते हैं उस जानवर का गोश्त बाप भी खा सकता है, उस जानवर का गोश्त माँ भी खा सकती है, उस जानवर का गोश्त दादा भी खा सकता है, उस जानवर का गोश्त दादी भी खा सकती है, उस जानवर का गोश्त घर के तमाम मेंबर और तमाम रिश्तेदार आइज़ा करबा को नबी फरमाते हैं चाहो तो कच्चा तकसीम कर दो, चाहो तो पूरा कर दो। बेशक 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 अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तो अकीका जब बच्चे का आप करा देंगे ना, अगर बच्चा खुदा न खास्ता दुनिया से चला गया, इंतकाल कर गया, तो हश्र का मैदान होगा जब उसमें सब अपने आप पर अपने ऊपर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी ना, उस वक्त वो बच्चा रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, बारे इलाह काश तूने अगर जिंदगी दे दी होती ना तो नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ करके, नेक अमल करके, अच्छे काम करके माँ बाप को तो जन्नती जरूर बना लेता, जन्नत के हकदार जरूर करा लेता, जन्नती करा लेता। तो मुस्तफा फरमाते अकीका कर गया है, अगर बच्चे का अकीका हो गया है, आका फरमाते हैं उसकी सिफारिश रब की बारगाह में कबूल होगी। बेशक 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 अकीका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेशक करना चाहिए। अब कुछ बहुत ऐसे होते हैं हजरत जो अकीका को शादी में करते हैं, बहुत ऐसा है। मगर देखिए कोई ऐसा नहीं है कि ये हराम हो या ना जाए, बात साफ जरूर। मसला क्या है? अकीका देखिए बच्चे की विलादत की खुशी में, उसके शुक्राने में हम जानवर ज़बह करते हैं, और शादी का वलीमा या शादी के शुक्राने की है। तो होना यह चाहिए जो जिस मौके पर हो वही चीज होना। अरे मारो घुटना फूटे सर, वो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं। शादी हो रही है उसमें हम बच्चे का शुक्राना अदा कर रहे हैं, तो इतना भी एडवांस ना हो जाए कि दो तीन तीन मौका समेट के रखें। हजरात जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का अकीका कर दो, जब शादी हो तो शादी में वलीमा कर लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कामयाब वही है जो वक्त के साथ और मौके पे काम करता रहे। बेशक बेशक मौके पे अकीका। हजरात मोहतरम, बच्चा दुनिया में आता है, बच्चा दुनिया में पैदा होता है। बहुत ऐसे भी होती है माँ बहनें, बहुत ऐसे भी हमारे भाई होते हैं जिनके माओ की गोद सूनी होती है, घर अंधेरा होता है, बच्चे घर में नहीं होते, ऐसा भी होते हैं ना। मगर ये कोई आदमी या किसी हमारी और आपके बस में नहीं है। रब कुरान में इरशाद फरमाता है जिसे चाहता हूँ बेटा देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटी देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों बेटा बेटी अता करता हूँ, और जिसे चाहता हूँ उसे कुछ ना देता हूँ। ये रब को औलाद देना इम्तिहान है, बेटे का देना इम्तिहान, बेटी का देना इम्तिहान, बेटा बेटी दोनों का देना इम्तिहान, और दोनों का न देना ये भी इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। हजरात मगर किसी की घर औलाद अगर ना हो तो लोग ताने मारते हैं, औलाद ना हो तो लोग बुरा भला कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, एक औरत एक खातून है, हजरत मूसा अला नबी अलैहि तहियत व सना की बारगाह में पहुंची, अर्ज करने लगी कि अल्लाह के पैगंबर बड़ा दिन गुजर गए, शादी हो गई, शादी से अब तक के लगभग 12, 13, 14 साल का अरसा गुजर गया, मगर ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, अब तक मेरे घर में कोई चराग नहीं है, अब तक मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, घर में कोई बेटा या बेटी नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा इरशाद फरमाते क्या करूं? तो वो खातून, वो औरत कहती है आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं खुदा के, रब से बात करते हैं, कलाम करते हैं। ऐसा करें जब आप कोहे तौर पर रब से कलाम करने के लिए जाएं, खुदा से बात करने के लिए जाएं ना, तो रब से पूछ ले जरा कि मेरी भी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं है, मेरी किस्मत में
کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت محترم یہ خاتون یا عورت کہتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا کہتے ہیں میں اٹھا کوہ طور کی طرف چلا، جب کوہ طور پر گیا رب سے بات ہوئی، جب کلام کر کے جب واپس ہونے لگا تب تک اس خاتون کی بات یاد آئی، اس عورت کی بات آئی، جب عورت کی بات یاد آئی تو میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کیا، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا بار الہ مولا تعالیٰ ایک تیری بندی آئی تھی مولا، رو رہی تھی رب قدیر، اس کی پلکیں بھیگی تھی مولا، آنکھوں میں آنسو تھے رب قدیر، اس طرح رو رہی تھی زار و قطار۔ اللہ ارشاد فرماتا میرے کلیم وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا وہ کہہ رہی تھی رب سے پوچھ لینا ذرا میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں، میرے مقدر میں یا میرے نصیبے میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ جا کر کہہ دو کوئی اولاد نہیں ہے، جا کر کہہ دو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ حضرات اگر کوئی عورت اس طرح سن پائے تو جی سکتی ہے؟ جب حضرت موسیٰ آئے نا تو موسیٰ جب آئے تو انتظار میں یہ خاتون بیٹھی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو خاتون نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر کیا ہوا؟ رب سے پوچھا، کہا ہاں پوچھ تو لیا، کہا بتاؤ، کہا ایک خاتون بتاتے ہوئے ذرا جھجک محسوس ہو رہی ہے، کہا بتاؤ نا کوئی بات نہیں ہے، رب کا فرمان ہے کہہ سکتے ہو، بتا سکتے ہو۔ جب اتنا کہنا تھا نا تو حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ خاتون دیکھ میں رب کی بارگاہ میں تیرے سوال کو پوچھا تھا، تو نے جو پوچھا تھا وہ رب کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا تھا، بارے الہ خاتون روتی ہوئی آئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، پلکیں بھیگی ہوئی ہے، بھیگی پلکوں کے ساتھ آئی ہے، اس کا سوال یہ ہے اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اس کی قسمت میں کوئی بیٹا ہے کہ نہیں، کوئی بیٹی ہے کہ نہیں، مولا اس کا گھر اندھیرا ہے۔ تو رب کا حکم ہوا اے موسیٰ اس کے گھر میں کوئی یعنی اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا نا عورت دیوانی سی ہو گئی، دیوانی سی ہوگی۔ حضرات اگر کسی کے اولاد نہ ہو ٹمپریلی ویسے تھوڑی دو ایک شادی ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں لوگ تانے مارنے لگتے ہیں، بس ٹمپریلی نہ ہو تو اگر کوئی کہہ دے اس کے گھر اولاد نہیں ہوگی تو بتاؤ دل چھلنی ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ تو ایک پیغمبر کی زبان سن چکی تھی، حضرت موسیٰ کی زبان نہیں سنی تھی، اس کے دل میں کیسے کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیت و تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتے عرض کرتے بارے الہ مولا محمد سمجھ میں نہ آیا، پروردگار عالم یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو رب کا حکم ہوا کیا ہوا؟ کہا مولا جو تو نے کہا تھا تیرا فرمان تھا اس عورت کے قسمت میں اس عورت کے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے، مگر میرے مولا میں نے دیکھا ہے پروردگاروں وہ گود میں بیٹا لے کر کے آئی، اس کا بیٹا اس کی گود سے جنم لیا ہے، اس کے پیٹ سے جنم لیا ہے، یہ اسی کا بیٹا تھا میرے مولا، اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں تو یہ بیٹا آیا کہاں سے؟ نصیبے میں اولاد نہیں تو یہ بیٹا جنم کہاں سے لیا؟ اتنا کہنا تھا نا تو حضرت موسیٰ رب کا حکم ہوا موسیٰ ایک پلیٹ لے لو، ایک تشتری پلیٹ لے لو، موسیٰ ذرا اس پلیٹ کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے بستی میں لوگوں سے کہنا رب کے نام پر اپنے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کے دو، بدن سے ایک بوٹی کاٹ کے دے دو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پلیٹ تشتری لیا، لینے کے بعد بستی میں نکلا، دروازے پہ دستک دیتا، وہ لوگوں دروازہ کھلتا کیا ہوا؟ کہا تشتری آگے کرتے، تشتری میں چاقو ہے، چھری ہے، کہتے اپنے جسم کا ایک بوٹی کاٹ کر کے رب کے نام پر دے سکتے ہو، دروازہ بند کر لیتا، کہتا چلے جاؤ، جسم ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی کاٹا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بستی کے ہر فرد کے پاس لوگ جہاں اکٹھا ہوتے وہاں جاتے اور جا کر کہتے او میرے بھائیوں کیا تم رب کی رضا کے لیے خدا کے نام پر جسم سے ایک بوٹی کاٹ کے دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ جب گھوم پھر کر کے موسیٰ ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازوں پر دستک دیا، لوگوں سے کہا، مگر لوگوں نے اپنی گوشت کے بوٹی کاٹ کر دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو مایوس ہو گئے موسیٰ، کہنے لگے کاش میرا رب مجھ سے مانگ لیتا، میرا رب مجھ سے مانگ لیتا تو رب کی بارگاہ میں تو اپنی گردن ہی پیش کر دیتا، مگر یہ بستی والوں سے مانگا تھا رب نے، لوگوں سے مانگا تھا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے بڑی جھجک، بڑی شرمندگی محسوس ہونے لگی، اس قوم کے بیچ میں جی رہا ہوں جو رب کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کا رزق کھاتے بھی ہیں اور خدا کے نام پر جسم کا ایک بوٹی نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں میں مایوس ہو کے چلا،
निकला तो किनारे क्या देखा ना, एक फकीराना लिबास में बैठा एक फकीर अल्लाह का मस्ताना बैठा, बस जुबान पर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, जुबान पर अल्लाह अल्लाह की सदाएं यानी हो रही है। वो जब अल्लाह का नाम ले रहा है तो हजरत मूसा कहते हैं मैंने मुड़ के देखा, दिल में ख्याल आया बड़े बड़े सब कुछ नहीं, हट्टे कट्टों ने ना दिया तो ये क्या देगा, ये तो पहले से फटी हालत में, ये क्या देगा। देख लिया जिस्म में जिनके गोश्त था उन्होंने तो हानि किया, ये तो पतला दुबला लग रहा है, इसके जिस्म में कितना गोश्त होगा। हजरत मूसा कहते हैं लोगों के पास गया था जिनके पास जिस्म सातो आफियत खुदा ने हर चीज से नवाजा था, मगर उन्होंने जब इनकार कर दिया। ये तो फकीराना लिबास है, जिस्म देख लो गोश्त नहीं है, ये सिर्फ चेचिस बॉडी हड्डी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कहते हैं मगर कहने लगे चला जाऊंगा तो दिल में ये रह जाएगा एक तो छूट गया, एक छूट गया, लाओ इससे भी कह के देख लेता हूँ। हजरत मूसा गए ना, कहा वो भाई, उसने कहा हाँ, कहा मुझे जानते हो, कहा आप अल्लाह के पैगंबर हैं। कहा ये मूसा ये क्या है, कहा ये अल्लाह का हुक्म है, मैं तश्तरी और छुरी लेकर के आया हूँ। कहा क्यों, कहा रब का हुक्म है ना, खुदा ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाम पर आदमी के जिस्म की एक बोटी ले आओ। जब इतना खुदा के मस्ताने ने ना, अल्लाह के दीवाने ने जब इतना सुना तो उसका मिजाज ही बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया, और जब चेहरे का रंग बदला मिजाज बदला ना, अल्लाह अकबर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं कि उस फकीर ने छुरी को तश्तरी से उठाया, उठाने के बाद में अपने हाथ के कलाई, अपने हाथ के कलाई की कलाई अपने हाथ के कलाई का एक गोश्त का एक बोटी काटा, गोश्त की एक बोटी काटा, काटने के बाद में उसने काटने के बाद तश्तरी में रखा। हजरत मूसा खुश हो गए और लेकर के चले, थोड़ी दूर 4 कदम चले थे, आवाज दी हो अल्लाह के पैगंबर ठहरो, अल्लाह के पैगंबर ठहरो। हजरत मूसा कहते मैं ठहर गया, और जब मैं ठहरा ना तो आवाज दी जरा करीब आए। जब आया हजरत मूसा आए ना तो फिर छुरी उठाया, उठाने के बाद में ये कलाई का काटा था, बाजू का काटा, बाजू का काटा। फिर मूसा से कहा ले जाओ। अब मूसा चले तो फिर आवाज दिया वो अल्लाह के पैगंबर जरा ठहरो। फिर अल्लाह के नबी ठहरे, फिर उस फकीर ने छुरी उठाया, उठाने के बाद कंधे की एक बोटी काटी। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फिर लेकर चले, फिर आवाज दिया, फिर लौटे, उस फकीर ने फिर छुरी लिया और गाल की एक बोटी इधर की एक बोटी इधर की, पेशानी का गोश्त यहाँ से खाल उतार लिया। अल्लाह पर सीने की एक बोटी काटा, पेट की एक बोटी काटा, रान की एक बोटी काटा, पिंडली की एक बोटी काटा, जिस्म के हर पुर्जे से, जिस्म के हर आजा से, जिस्म के हर टुकड़े से एक एक बोटी काटा। काटने के बाद में मूसा की तश्तरी सजा दिया और सजा कर कहा मूसा ले जाओ, मूसा ले जाओ। मूसा अल्लाह के पैगंबर है, पूछने लगे बंदे ए फकीर तू, तेरी हालत तो ऐसी ना थी मगर मामा समझ में ना आया, तूने हाथ की काटा कोई बात नहीं, मगर तूने बाजू का काटा, मगर तूने कभी कंधे का काटा, कभी सीने का गोश्त काटा, कभी पेट की बोटी काटा, कभी पिंडली की बोटी काटा, जिस्म के हर पुर्जे से। तो उस फकीर की पलकें भीगी थी और रो करके अल्लाह का मस्ताना कह रहा था, ओ मूसा ये जो जिस्म ने रब की दी हुई है, ये जो जान खुदा ने दी है, ए मूसा जब सब कुछ खुदा का है तो मूसा न जाने खुदा कौन से जिस्म से किस पार्ट की बोटी मांगा हो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न जाने खुदा जिस्म के कौन से आजू कौन से टुकड़े से बोटी मांगा हो। बेशक बेशक, हो सकता है बाजू का मांगा हो, नहीं हो सकता है गाल का मांगा हो, ना हो सकता है कंधे का मांगा हो, सीने का मांगा हो, पेट का मांगा हो। ए मूसा ले जाओ। पूरी तश्तरी भर दिया फकीर ने। अब जब फकीर मूसा लेकर कुछ दूर पर पहुंचे ना, अर्ज करते मौला ले आया, अल्लाह का हुक्म हुआ मूसा तूने कहां से मूसा लेकर क्या इतना गोश्त, एक बोटी की जरूरत थी। हजरत मूसा कहते अल्लाह कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था, मगर एक देने पर आया तो रुकता ही नहीं था। कोई देने के लिए तैयार ही नहीं था। मौला बस्ती को छान डाला, बस्ती के लोगों के दरवाजे खटखटाए, बस्ती में जा करके हमने लोगों के दरवाजों पर दस्तक दिया, लोगों से कहा मगर हे परवरदिगारा कोई तेरे नाम पर जिस्म से एक बोटी काट कर देने के लिए तैयार न हुआ, मगर मेरे मौला एक ऐसा तेरा दीवाना मिला था, एक ऐसा मस्ताना मिला था। मौला जब देने पर आया तो रुक
रुकता ही नहीं था, बेशक 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 वो बेशक रुकता ही नहीं था, देता ही जाता था। बेशक बेशक अल्लाह का हुक्म हुआ, ए मूसा, जानते हो जब वो खातून तुम्हारे पास से चली थी ना, तुमने उस औरत से कहा था तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है, तब वो वहां से चली थी, उसी फकीर के पास पहुंची थी, उसी नेक बंदे के पास गई थी, और नेक बंदे के पास जाकर कही थी, मैं तो वो अभागन हूँ, मैं तो वो बदनसीब और बदकिस्मत है कि मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, मेरी किस्मत में कोई बेटी नहीं है, मेरे पास मेरी कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर। तो उस अल्लाह वाले ने मूसा मेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाकर उस औरत के हक में औलाद मांग लिया, बेशक 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 औलाद मांग लिया था। मूसा समझ सकते हो, जो मेरे नाम पर बोटियां काट के दे सकता है, मैं उसकी बात रद्द कर सकता हूँ? बेशक 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 जो मेरे नाम पर जिस्म के हर आजा से बोटियां काट के दे सकता है मूसा, उसके लिए तकदीर न बदल दूं तो मशीयत रब्बी क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों, रब के नेक बंदों की बारगाह में जाया करो, रब की नेक बंदों की बारगाहों में हाजिर हुआ करो, इसलिए कि वो अदीम और पाकीज़ा चौखटें होती है, जहाँ से हम सब मुसलमानों की ईमान की जमानत मिलती है। ये वो अदीम बारगाहें होती है जहाँ से बिगड़ी बनती है, मुकद्दरें समझ जाती है, तकदीरें बदल दी जाती है। अल्लाह अकबर। ये जिनके लिए और जिनके हाथ में दुआओं के लिए ये अल्लाह वाले हाथ उठा देते हैं, बिगड़ी तकदीर को अल्लाह बना दिया करता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह बेशक बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह याद है मेरे भाई, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करूंगा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बेटे घर में तशरीफ लाई, बच्चे बच्चियां अगर घर में जन्म लेना मेरे भाई, तो उनको उनका नाम बेहतर रखें, अच्छा रखें, नाम के साथ साथ उन बच्चों को बेहतर पालें, अच्छी परवरिश करें। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी है। इसलिए मुसलमानों की औलाद ये हम लोगों के लिए आगे का दरिया है। बेशक बेशक आगे के लिए जैसे हम लोग खेत समझे, आज जो जैसा बोएंगे ना कल वही पाएंगे। बेशक तो आज जिस तरह उनको पालेंगे, गाली सिखाएंगे, तो बूढ़े होने तो लाख गाली पहले तुमको देंगे। सही है? तो लिहाजा मेरे भाई, उनको नबी की सुन्नत, नबी की सीरत, सहाबा का तरीका सिखाओ। बेशक बेशक इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। औलाद अगर सुन्नत रसूल पर आमिल, सुन्नत रसूल का आमिल और सुन्नत रसूल पर अमल करने वाला है मुसलमानों, तो ये समझो कि तुम वक्त के सिकंदर हो। इसलिए कि औलाद अगर सुन्नत रसूल पर अमल पैरा है, औलाद अगर सुन्नत रसूल पर अमल करता है, तो ये समझो मुसलमानों, अगर तुम उनके जरिए बख्श दिए जाओगे तो वो तुम्हारे जरिए बख्श। बेशक 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 सुभान ये औलादें होती है। बेशक रब अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मैंने बड़ी लंबी तारीख समेट कर आप लोगों के सामने चंद मिनट में रख दी। दुआ करते हैं रब की बारगाह में कि हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम जुमला मुसलमानों को नेक राहों का मुसाफिर बनाए। और अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने का मतलब मेरे भाई ये है कि हमारी निगाहें जो गुनाह करती है ना, हमारे जो हाथ गुनाह करते हैं, ये पांव जो कभी गुनाह की तरफ उठते हैं ना, इनको गुनाहों से हम और आप रोकें। इन निगाहों की हिफाजत करें, इस जुबान की हिफाजत करें, क्योंकि रब का फरमान है, हश्र का मैदान होगा ना, तुम्हारे होंठ सिल दिए जाएंगे, ये कुछ बोल ही नहीं सकते हो। सूरह यासीन में है, अल्लाह ताला फरमाता है होंठ सिल दिए जाएंगे, होंठ बंद कर दिए जाएंगे, ये हाथ बोलेगा, पांव गवाही देगा। कहाँ गए, क्या किए, क्या करके आए हो, कैसा करके आए हो, जब जर्रे जर्रे का हिसाब होगा ना, वही कहते हैं अगर बख्श देना तो उसकी अता है, और जिस दिन वो आदल करने पर आएगा ना, तो बहुत मुश्किल है मुसलमानों की हम सब कोई जन्नती या जन्नत के हकदार हो सके। हम वैसे तो सब जन्नती ही है नहीं है जन्नती, मगर यह है कि अपनी खता काट के हम जाएंगे। जहन्नम में तो जलना पड़ेगा भाई, जब इसको यहाँ दुनिया में ऐशो इशरत की काट रहे हैं। तो लिहाजा मेरे भाई, जहन्नम से अगर बचना चाहते हैं
تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، بہتر کام کریں، صراط مستقیم پر عمل کریں۔ ہم اور آپ بہتر جب عمل اور نیک ہمارا اور آپ کا کام ہوگا نا، تو یہ دنیا کچھ بھی کہے، جانے والا غریب تھا، جانے والا فقیر تھا، جانے والا بے بس تھا، جانے والا کمزور تھا، جانے والا لاچار تھا، جانے والا مجبور تھا، مگر یہ فرشتوں کی گونج بتائے گی جانے والا غریب ضرور تھا، فقیر ضرور تھا، جانے والا بے بس ضرور تھا، مگر یاد رکھ یہ جو چارپائی پر 4 لوگوں کے کندھوں پر جا رہا ہے، یہ فقیر نہیں، عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، خدا کا نیک بندہ جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں، عاشق مصطفیٰ بننے کے لیے لوگوں نے پتھروں کا کھانا برداشت کیا۔ اے حضرت ویسے کرنی کو لوگوں نے مارا کہ نہیں مارا پتھر سے؟ کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، یہاں تک انہوں نے بستی چھوڑ دی، صحرا میں جا کر فقط اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ کیا نہیں تھا؟ ہر چیز تو تھا میرے بھائی، مگر یہ رلاتا کون تھا؟ خدا کا خوف۔ یہ رب کے بارگاہ میں جھکاتا کون تھا؟ یہ شوق بندگی مصطفیٰ کی محبت تھی جو رب کی بارگاہ میں جھکاتی تھی، اور یہ رلاتا وہی خدا کا خوف رلاتا تھا۔ تو میرے بھائی، دل کی عطا گہرائیوں میں دل میں مصطفیٰ کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کرو۔ انشاءاللہ العزیز ان دونوں نے کروٹیں لی نا تو جنت جہنم تکتی رہ جائے گی، ہم جنت کے مسافر ہو جائیں گے۔ دعا ہے رب قدیر ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سلام پڑھا جائے۔